Good evening and welcome everyone to this economic survey course. The much awaited economic survey course for UPSC Civil Services exam begins today. The survey expects the economic growth recovery from the second half of the year, and this is because of the better ecosystem created by the government. The economic survey says as much. So in this incisive manner we are going to deal with these 20 odd chapters of economic survey 2020. This is economic survey 2020, 2019, 2020. This is the economic survey of previous year. Since we are studying it in this year, that is why it has been written 2020, 2021. Basically, one of my friends was asked the question in the interview कि why do we study the economic survey of previous year 2019, 2020? Why do we study that? Or why are we studying the economic survey of 2020, 2021? It is based upon the survey of economic conditions of the past year that we are trying to foresee the economic future of India in the coming year. Did you get my point? So this is how we are going to carry forward our discussions on economic survey. So this is economic survey 2020, 2021. Just to confuse you, I told you 2020, 2021 यानी कि जो बीत गया साल उसका सर्वेक्षण, उसका सर्वे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. तो कभी आपसे कोई इंटरव्यू पैनल में ये पूछे तो आपको पता होना जरूरी है. वैसे तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की अप्रोच बदल जाती है, तो फिर भी यहां पे कमिंग टू द चैप्टर्स, saving lives and livelihoods amidst a once in a century crisis. Does growth lead to debt sustainability? Some of the topics I find very interesting. This is one of them. Okay, क्या ग्रोथ की वजह से डेट सस्टेनेबिलिटी हो सकती है या क्या डेट सस्टेनेबिलिटी की वजह से ग्रोथ हो सकती है? Does India's sovereign credit rating reflect its fundamentals? No. क्या यहां पे क्रेडिट रेटिंग्स को ब्लेम किया गया है? इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट और कन्वर्जेंस. इनइक्वालिटी और ग्रोथ, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है या क्या ये कन्वर्ज होंगी? क्या ग्रोथ विल लीड टू इक्वालिटी? कुछ इस तरह से इस टॉपिक को हम समझेंगे. लाइकवाइज देयर आर मोर चैप्टर्स इन दिस इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1. वी आर गोइंग टू स्टडी देम वन बाय वन. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग गाइज. तो कुछ अच्छे वे में इसको स्टार्ट करेंगे सो दैट वी कैन टेक अवे द मैक्सिमम नॉलेज फ्रॉम दीज क्लासेस, 14-15 classes that are there. Saving lives and livelihoods amidst a once in a century kind of a crisis. Pandemic. Unique recession where 90% of the countries are expected to experience contraction in the GDP per capita. 90% of the countries. Okay. Just a minute. So 90% of the countries might expect a contraction in the GDP. Just give me 1 minute. There seems to be some error. Maybe I spoke too much good about the economy that madam could not digest, and that is why it so happened. होता है ना, कभी कभी अच्छी बात बुरी लग जाती है क्योंकि अच्छे दिन नहीं आए. नाउ मे बी द बिल गेट्स डिड नॉट लाइक व्हाट आई सेड. सो ये सारे चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे में जो हम डील करने जा रहे हैं अगले कुछ हिस्सों में, अगले कुछ क्लासेस में. व्हाई इज दिस हैपनिंग?
सो यहाँ पे एक बीच बीच में कोट्स भी हैं. सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जेपडी इज द ओरिजिन ऑफ धर्मा. यू कैन imagine it to be an essay topic also. You can imagine this to be an essay topic also. Okay, saving a life. What are the kartavya? What is the kartavya of the state? Okay, कुछ इस तरह से आप इसको देख सकते हो. स्टेट के परम धर्म क्या होने चाहिए? What should be the objectives of the state? This is how you have to look at it. Some of the students are facing some issues, so let me just have a look at their problems. संतोष, सो ये एक चीज थी. देन नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च. ये जीनत को ये मैसेज दे दो, इकोनॉमिक सर्वे कोर्स इनकी प्रोफाइल में ऐड कर दें. नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च इन हैंसन एंड सार्जेंट. It recommends a policy focused on minimizing losses in a worst case scenario when uncertainty is very high. So बातों का कुछ सेंस नहीं बन रहा. We will try to be as much positive as possible. यहाँ पे ये कहना है कि ऐसे टाइम पे इन हैंसन और सार्जेंट की जो रिसर्च थी वो ये कहती है कि क्राइसिस के टाइम पे कुछ ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, जो वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि जब अनसर्टेनिटी हाई हो, मिनिमाइज करना चाहिए लॉस एज मच एज पॉसिबल. ओके, वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस एज मच एज पॉसिबल. Those who are facing the voice problem, others are not facing it. So please watch the session in the incognito mode always. कंप्यूटर पे कुछ भी करते हो, अच्छे काम या बुरे काम, इनकॉग्निटो मोड में किया करो, राइट? तो समझ रहे हो ना बात को. echo and everything will not happen. Why is it not happening with others? Because they are watching in the this mode, right? So coming to the next part, फटाफट से आगे चलते हैं. SARS-CoV-2, इसका नाम पूरा क्या है? SARS. First identified in Wuhan city of China, December 2019. The virus has posed an unprecedented challenge for policy making globally. हमारे लिए कुछ नहीं है इसमें, फटाफट से आगे चलेंगे. ट्रेंड और ये सब कुछ काम का नहीं है. Early strategies to control the virus, if given an ethics topic or something, या public health crisis management, disaster management, GS mains paper 3. Active surveillance, early detection. सर्वेलेंस क्या होता है? सर्वेलेंस पे रहना, गशत पे रहना. हिंदी में बोला जाता है गशत. गशत पे मतलब कि रेकी करना कि क्या चल रहा है, ठीक है? कोई और केसेस जो नए आ रहे हैं उनको अर्ली वे में डिटेक्ट करना. हमने यही स्ट्रैटेजी लगाई थी. जो पहले 8-10 दिन का 12 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, वो क्या था? कंटेनमेंट, आइसोलेट करना केसेस को, ठीक है? थर्ड नंबर पे आइसोलेट करना, ताकि सभी लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे. सभी लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? क्राइसिस कम हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग द वॉइस प्रॉब्लम? तुम लोगों को, श्रिया एंड अदर्स, हर्षिता. ओके, लेट मी रिजॉल्व दिस, जस्ट 1 minute. Now is it fine? Okay, it is fine. So फिर हमने क्या किया? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया कि जो लोग फॉरेन से रिटर्न होके आए हैं उनके ऊपर चेक करना. फिर हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना शुरू किया, सेफ्टी प्रिकॉशंस. these were the steps that we were also taking in this manner, right? तो एक्टिव सर्विलेंस, एयरपोर्ट्स वगैरह पे हमने फ्लाइट्स को बंद कर दिया. अर्ली डिटेक्शन के लिए हमने तबलीगी जमात वाला जो केस हुआ उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, ये सारा कुछ किया गया, राइट? नाउ कमिंग हियर, impact on economy. Lockdown measures led to a de facto shutdown. Even if the economy was formally declared to be open to limited extent, but de facto shutdown was there of a significant portion of global economy, thereby triggering a global recession this year. World Economic Survey says that world economy point to be noted. The world economy is estimated to contract in 2020 by 4.3% as per World Bank and 3.5% as per IMF. ठीक है, 4.3% World Bank कह रहे हैं. तो according to Economic Survey और according to World Bank,
the growth is going to be more than what IMF says. This is the derivation, है ना? This is what we can derive from here. Implicit नहीं है, explicitly दे रखा है यहाँ पे, तो ये नोट करना है. How this crisis is unique. Previous global recessions were driven by confluences of a wide range of factors. Confluences of wide range of factors, including financial crisis. Right? Previous global recessions were driven by merger or you can say association of so many factors. Confluence मतलब जैसे दो rivers एक साथ मिलती हैं. Sharp movements in the oil prices. तो ये क्या क्या रीजंस थे? एक प्रीलिम्स के बेस एक क्वेश्चन को इमेजिन करो. व्हाट ऑल वर द रीजंस बिहाइंड द प्रीवियस रिसेशंस? फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारे एक साथ कुछ ऐसा क्राइसिस आए थे. ऑयल प्राइसेस, फिर वॉर्स हुए साथ साथ में. तो ये ओवरलैपिंग या फिर वन थिंग लीडिंग टू अनदर काइंड ऑफ अ सिचुएशन थी. 1930s में कुछ ऐसा हुआ. वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमीज ढीली पड़ रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, राइट? तो ये ईयर्स उसके साथ कुछ ऐसा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमीज जो ढीली पड़ रही थी, ठीक है. देयर वाज स्लगिशनेस इन द इकोनॉमीज. और फिर उसके बाद 1975 में जो गल्फ वॉर हुआ, ऑयल प्राइसेस और ये सब देखने को मिला. एंड a combination of factors was at play in the previous recessions. This is what it says. How this crisis is unique. This recession is highly synchronized as the fraction of economies experiencing annual declines in national per capita incomes is highest since 1870s. Is highest since 1870. एकदम से ये सेशंस को एकदम से ये सेशंस का बंद होना, राइट? एकदम से ये इकोनॉमी का बंद होना सिंक्रोनाइज्ड वे में. सो एक्सपीरियंसिंग एनुअल डिक्लाइंस इन द नेशनल पर कैपिटा इनकम, सभी इकोनॉमीज का एक साथ coming to a grinding halt. Okay, more than 90% of the economies annual declines अपने यहाँ पे देख रही हैं. fraction of economies experiencing annual declines in the national per capita income is the highest. clear है? Restricted economic activities of various hues and exacerbated impact on livelihoods. Thus, COVID-19 crisis presented a trade-off between lives and livelihoods in the short run. Okay? भेज दिया जीनत को. अभी are you watching in the incognito mode? क्या आप इनकॉग्निटो मोड में इसे देख रहे हो? Now, how this crisis is unique. The short-run trade-off presented countries with the policy options that revealed policymakers' preferences for the value placed on human life versus the price for temporary economic restrictions. तो हमने वैल्यू किस पे प्लेस करी? हमने ज्यादा वैल्यू किस पे प्लेस करी? हमने ज्यादा वैल्यू प्लेस करी किस पे? ह्यूमन लाइफ पे. वर्सेस द प्राइस ऑफ टेम्पोरेरी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे चोज द फॉर्मर फॉर द लेटर, फोरसेकिंग द लैटर. ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा याद रखना, ऐसी कुछ चीजें आती हैं. आगे चलेंगे तो और कॉन्सेप्ट्स आएंगे. वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग सम वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स आल्सो. Okay, now India's response. India's policy response has been valuing human life even while paying the price of temporary GDP decline. The short term, अब अगर प्रीलिम्स में ये आए तो तुम ये मत याद करने लग जाना कि निर्मला सीतारमन को बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे थे कि स्टिमुलस दो, स्टिमुलस नहीं दिया गया. इसका मतलब हमारे यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ को फोरसेक नहीं किया गया. नहीं, हमारे यहाँ भी जीडीपी ग्रोथ को दरकिनार कर दिया गया, राइट? Here also in India also the short term trade off का मतलब होता है कि क्या करें क्या ना करें. Short term trade off between lives and livelihoods is converted into a win-win in the medium to long term that saves both lives and livelihoods. ये मतलब समझ में आया इस लाइन का? यानी कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ अभी देखने को मिल रहा था कोविड-19 के चलते, वो बाद में विन विन सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि जो लाइव्स जाएंगी, जो जाने चली जाएंगी, लाइवलीहुड्स आगे उन परिवारों के लिए चला जाएगा. अगर किसी फैमिली का कोई ब्रेड अर्नर है, ब्रेड विनर है,
अगर कोविड-19 में लॉकडाउन नहीं लगाते, जीडीपी को अगर हम ध्यान में रखते, तो हो सकता है कि हम इस मेल मेंबर ऑफ फैमिली को या फीमेल मेंबर ऑफ फैमिली को खो देते। तो इन फ्यूचर इन बच्चों के लाइवलीहुड पे भी असर पड़ता और इनकी लाइव्स पे भी असर पड़ता। बट अभी हमने जो शॉर्ट टर्म पेन झेला है कि चलो ठीक है, खाने को आज कुछ अनाज नहीं है, घर पे सैलरीज नहीं आ रही, राशन नहीं मिल रहा, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म था। उसके बाद इन द लॉन्ग रन वी वुड बी एबल टू सेव बोथ लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। फाइन। फ्लैटनिंग द कर्व, इट्स अ की स्ट्रैटेजी। कौन से कर्व को फ्लैटन करने की बात करी जा रही है? When the prelims में क्वेश्चन आएगा, the economic survey talks about flattening of the curve. Which curve is it referring to? Is it referring to the growth curve? Is it referring to the V-shaped curve of recovery? Or is it referring to the curve of cases? A, B, C. Please answer. Please answer. A, is it referring to the growth curve? Or B, is it referring to the V-shaped curve of recovery? C, is it referring to the curve of cases? Cases only, ठीक है। हमारे केसेस ऐसे बढ़ते जा रहे थे। अब इस कर्व को हमें फ्लैटन करना है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करूँ तो ये केसेस बढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है, बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको हमें फ्लैटन करना है कि केसेस रुक जाएं, फिर ये और नीचे ही जाएंगे, केसेस फ्लैट हो जाएंगे। फ्लैट मतलब जीरो लाइन के पास आ जाएंगे। गॉट इट? कर्व रेफर्स टू द प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ पीपल हु विल कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज, यानी कि केसेस ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। द शेप ऑफ द कर्व वेरीज अकॉर्डिंग टू द रैपिडिटी with which the infections spread in the community. The flattening of the curve spreads the pandemic over time, enabling more people to receive proper health treatment, ultimately lowering the fatalities rate. ठीक है, तो I don't want to share this story with you, but one of my very far off relatives and all, तो उनके साथ क्या हुआ कि he was in his 40s, 45-50 years के बीच में थे वो, वेरी फार ऑफ रिलेटिव। उनको कोविड का लंग्स पे इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। ये छोटा सा एक केस है। लंग्स पे इम्पैक्ट आने की वजह से जो बूस्टर इंजेक्शंस दिए गए उसकी वजह से शुगर लेवल हाई हो गया। ही वॉज नॉट इन टू ड्रिंकिंग दैट मच, ही वॉज नॉट अ काइंड ऑफ हैबिचुअल ड्रिंकर और समथिंग लाइक दैट, बट वो शुगर लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि हिज लोअर लेग्स वर चॉप्ड ऑफ, ठीक है, एम्प्यूटेट कर दिया गया। फिर उसके बाद बॉडी की एक कैपेसिटी, डर हो जाता है एक इंसान को कि मेरी टांगें काट दी गई। उसके बाद जब उनको दोबारा से बैंडेड वगैरह दोबारा से ड्रेसिंग करने के लिए डॉक्टर्स आ रहे थे, तो he was so much shivering and all that oxygen level went down and he succumbed to that fear factor only. He died ultimately. तो ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं इसको हम फैटलिटीज़ और एम्पुटेशन ऑफ लंग्स और एम्पुटेशन ऑफ लेग्स, ये सारा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली लोअरिंग दी फैटलिटी रेट, हमारी सरकार का ये ऑब्जेक्टिव था कि कैसे ना कैसे करके इस कर्व को नीचे लाया जाए। ये कर्व कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, केसेस कम होने लग जाएंगे, तो फैटलिटी रेट अपने आप कम होने लग जाएगा। अगर हम ये करते कि इधर से केसेस की सप्लाई बढ़ती जाती और इन लोगों के लिए हमारे पास ऑक्सीजन भी कम पड़ जाती तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था, राइट। This is the curve they are referring to. Augmented healthcare system, healthcare capacity, original healthcare capacity and then augmented, इसको और उठा दिया गया। ऑक्सीजन के साइलेंडर्स इंडिया को मंगवाने पड़े। हमारे यहाँ एक स्टेज पे ऐसा हो रहा था कि ऑक्सीजन भी कम पड़ सकती थी। Lowering the peak lowers the mortality and morbidity and fatalities by avoiding the overloading of the health system. This derivation needs to be memorized. समझ में आया? ये जो चीज है लोअरिंग द पीक ऑफ द केसेस, अगर ये पीक यहाँ पे इसकी बजाय यहाँ पे होता तो ये वाली जो फैटलिटीज है ना वो और ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम वुड हैव succumbed to, would have surrendered in front of increasing number of cases. इसीलिए flattening the curve provides valuable time to ramp up
द टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक के लिए ये काफी पॉइंट्स जो है काम आएंगे मेंस के लिए। प्रीलिम्स में भी किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये चीजें आपको हेल्प करेंगी जरूर। एक होता है ना इंट्यूटिव थिंकिंग, कुछ ऐसा, उसमें हेल्प करेंगी, तो ध्यान से सुनते रहो। रिसर्च ड्रिवन पॉलिसी रिस्पॉन्स अमिडस्ट अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी। रिसर्च ड्रिवन, क्या अनप्रेसिडेंटेड लेवल की अनसर्टेनिटी के दौरान रिसर्च ड्रिवन पॉलिसी रिस्पॉन्स दिया जा सकता है? आई रिपीट, क्या अनप्रेसिडेंटेड लेवल की अनसर्टेनिटी, आपदा के दौरान रिसर्च ड्रिवन पॉलिसी रिस्पॉन्स दिया जा सकता है? इन एपिडेमियोलॉजी, two factors are particularly important for evaluating the severity of contagious disease. Can we expect a question like analyze the government strategy of early lockdown? Yes, early lockdown was a containment strategy. ठीक है, देखो बच्चे बी प्रिपेयर्ड। ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा हुआ आपके इंटरव्यू के टाइम पे, तो ये स्टेजेस आपसे पूछी जा सकती हैं कि गवर्नमेंट ने पहले क्या किया। क्या हमारे यहाँ पे एक्टिव सर्विलांस थी? स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे एक्टिव सर्विलांस नहीं थी। सबसे पहला जो स्टेप हमने लिया 22 मार्च को लॉकडाउन, ठीक है, दिस स्टेप वाज द फर्स्ट वन। फिर उसके बाद हमने एक्टिव सर्विलांस स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अर्ली डिटेक्शन हमने स्टार्ट किया, जब तबलीगी जमात और ये वाला ये हो गया था, ठीक है, कंट्रोवर्सी हुई थी कि तबलीगी जमात में 1000 लोग एक स्टेज पे एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे। फिर हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा, फिर हमने सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इन्फोर्स करा, राइट। तो यू शुड बी नोइंग दिस। हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, हमने ये स्ट्रैटेजी में पहला स्टेप पहले लिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या थी? फिर फंडामेंटल प्लेन पे आप ये सारी चीजें लिखोगे। वी प्लेस्ड वैल्यू ऑन ह्यूमन लाइफ वर्सेस द प्राइस ऑफ द टेम्परेरी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस। जैसा मैंने समझाया, अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये लाइन आसानी से याद रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे, ऑगमेंटेड हेल्थ केयर कैपेसिटी। जैसे ये विद प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, the healthcare system and the administration got the time to ramp up the हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी। हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी को बूस्ट देने में आसानी हमें मिली। फिर 50 लाख रुपए का डॉक्टर्स के लिए इंश्योरेंस और ये सब करके मेडिकल फ्रेटर्निटी का मनोबल बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है ना, उनको मोटिवेटेड रखने की। डॉक्टर्स को सम्मान दिया गया, हमारे डॉक्टर्स के लिए थाली बजवाई गई, वो सारा कुछ, ठीक है। गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी, देखो यार तुम्हारे कमेंट्स ना मुझे तंग करते हैं। इनकॉग्निटो मोड, जिसमें तुम्हें बोलना पड़ रहा है, जिसमें बैठ के उल्टे सीधे काम करते हो, जो गलत मूवीज देखते हो, उस इनकॉग्निटो मोड को खोलो और फिर वहां पे देखो, ठीक है। मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, लेकिन मैं फनी वे में भी कह रहा हूँ। कुंदन, ट्राई टू ओपन दिस इन दी इनकॉग्निटो मोड। तुम लोग ऐसे करते हो, मोदी जी बोलते हैं कि ये वाला भारत है वो वाला, यहाँ पे जाओ इनकॉग्निटो मोड को ओपन करो। यहाँ से इनकॉग्निटो मोड खुलता है ना, ये इनकॉग्निटो मोड खोल के फिर उसमें jvjatinverma.org ओपन करो, राइट। नाउ कमिंग हियर, मुझे बुरा लगता है कि तुम लोगों ने पे करा है, सब कुछ करा है, फिर भी तुम नहीं देख पा रहे हो, तो वो हमारी भी गलती है और सरकार की भी गलती है। इंटरनेट शटडाउन की बातें करते हैं, फिर बोलते हैं डिजिटल इंडिया। नाउ चाहे तो ये सब कुछ दे सकते हैं, बट नहीं देना। अब समझ में आया कि कैसे आपको लिखना है इसमें। नाउ in many political parties are being rallies are being organized due to upcoming assembly elections in many states. How should we address this issue, because COVID is still there out very much? Yes, so how should we be addressing? अब ये तो दिक्कत है ना। आप ये बात करते हो, आप इलाहाबाद में जाओगे, कहीं जाओगे, वहाँ पे संगम का मेला चल रहा है ना, कुंभ मेला एंड ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग ऑन। Scant regard is being paid to all this. पॉपुलिज्म के चलते डेमोक्रेसी में ये फेस्टिवल है। हाउ शुड वी बी एड्रेसिंग दिस? हाउ शुड वी एड्रेस दिस फिनोमिना? अभी तो वैक्सीन के चलते कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इस पे मैं बाद में आऊँगा पॉलिटिकल उसमें कभी, अभी पहले एक बार फ्लो में चलते हैं, फ्लो को ब्रेक नहीं करेंगे। नाउ अनसर्टेन कोविड-19 पैरामीटर्स इन मार्च 2020, ये सारा कुछ चल रहा था, काम का नहीं है। हायर स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन पोटेंशियल इन डेंस एरियाज। Now your point has come in, Saswat. Higher speed of transmission, dense areas में social distancing maintain नहीं होती। Two important factors that then became significant are
the absolute population and population density. This is because the higher proximity, closeness between people, higher is the likelihood that an infected person carrying the virus will make contact with a susceptible person, vulnerable person. Vulnerability बढ़ जाती है. Susceptibility मतलब केस होने की, कोविड होने की आशंका, एक दूसरे से ट्रांसमिट होने की. जनरल बातें हैं. नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है. दिल्ली जैसे एरियाज में डेंसिटी ज्यादा है. एब्सोल्यूट पॉपुलेशन उस एरिया की कितनी है ना. हमारी कंट्री की एब्सोल्यूट पॉपुलेशन एक तो ज्यादा है और दूसरा डेंसिटी ज्यादा हो जाती है. अब अगर एक एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ज्यादा हो, कंट्री का साइज ज्यादा हो, डेंसिटी कम हो जाती है. दोनों अलग अलग चीजें हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी? व्हाट इज द डिफरेंस? राइट. सो क्लियर? दोनों का डिफरेंस क्लियर है. एब्सोल्यूट पॉपुलेशन कितनी है वो एक अलग बात है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करती है कंट्री के साइज पे. एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट कंट्री, है ना. क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलस कंट्री है, साइज उतना ज़्यादा नहीं है, चाइना जितना बड़ा नहीं है, रशिया जितना बड़ा नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है. तो प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द पीपल ज़्यादा होगी. अगर प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द पीपल ज़्यादा होगी तो कोई अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे. यस, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेंसिटी. एब्सोल्यूट पॉपुलेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी है. नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी अफेक्ट्स द ट्रांसमिशन इन अर्ली फेज ऑफ द पैंडेमिक. पॉपुलेशन डेंसिटी अफेक्ट्स द ट्रांसमिशन एट द ऑनसेट. छोटी छोटी सी चीजें हैं. इलास्टिसिटी ऑफ ट्रांसमिशन टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी. इलास्टिसिटी ऑफ ट्रांसमिशन का क्या रिलेशन है इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन डेंसिटी से. तो जहां पे इलास्टिसिटी ट्रांसमिशन की बढ़ेगी वो वाला पॉइंट होगा जहां पे डेंसिटी ज्यादा है. डेंसिटी फिर उसके बाद क्या गाइडिंग फैक्टर हो जाएगा सेकेंड स्टेज में, मैं वैसे बता रहा हूं, यहां पे नहीं लिखा. सेकेंड स्टेज में ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ केसेस कितनी है. देन द डेंसिटी ऑफ केसेस विल डिटरमाइन कि वायरस कितनी जल्दी से बढ़ेगा. इनिशियल स्टेज में तो ये फिर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगा, है ना, अगर हम इनिशियल स्टेज में से कंट्रोल कर लेते हैं. लेकिन जब फिर डेंसिटी ऑफ केसेस पे बात आ जाएगी, फिर इस सेकंड फेज अगर हमें इसका बनाना हो तो क्या होता, वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता था कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ने लगता. फिर जो डेंसिटी ऑफ अफेक्टेड पीपल है, दे वुड हैव अफेक्टेड पीपल इन मल्टीपल्स, है ना. एक पर्सन कितने कॉन्टैक्ट में आएगा, उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, फिर वो सब्जी लेने जाएंगे, फिर सब्जी वाला, फिर उसके बाद सब्जी वाले से जितने सब्जी लेने आएंगे फिर उनकी फैमिलीज. गॉट इट. तो अभी तो हमने फिर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टेज पे इसे रोक लिया. अभी तो हम यहीं पे ये बात कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ ट्रांसमिशन टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी. But still having so much population, but our prevention is better than many other well-established countries. Okay, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में थोड़ा कम स्प्रेड हुआ है, ये भी एक बड़ा रीज़न है. इंडिया ट्रॉपिकल कंट्रीज में आता है. शायद अभी रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन कि हमारी कंट्री में इतने केसेस क्यों नहीं हुए. एफिकेसी ऑफ लॉकडाउन इन अ पैंडेमिक, लर्निंग्स फ्रॉम स्पेनिश फ्लू. स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक ऑफ 1918-1919 से ये समझ में आता है, इट वॉज वन ऑफ द डेडलीस्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विद पीक ऑफ वर्ल्ड वाइड मोर्टालिटी रेट इन मॉडर्न टाइम्स. उस टाइम पे 500 million people got infected with it. Pandemic began during World War I and the virus is thought to have been introduced and spread throughout the United States by soldiers returning from Europe. तो इस पे क्या हुआ था, लॉकडाउन implemented in 1918 resemble many of the policies used to reduce the spread of COVID-19. तो उस टाइम पे लॉकडाउन जो है लगाया गया था केसेस को हॉल्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग स्कूल, थिएटर, चर्च एंड ऑल द प्लेसेस ऑफ पब्लिक गैदरिंग. Other public health interventions of that time used were emphasis on hand washing, sanitization practices and social and physical distancing. Then, given that India is the second largest populated country in the world with a high density,
ट्रांसमिशन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था। जान है तो जहान है, एंड टू ब्रेक द चेन ऑफ स्प्रेड बिफोर इट रीचेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ये आप सुन रहे थे सारी जगह, डिलेमा ऑफ लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड। डिलेमा ऑफ लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड क्या बताता है आपको? एक तरफ तो जान बचानी है और दूसरी तरफ रोजी कमानी है, रोटी कमानी है ना? लाइवलीहुड मीन्स दैट ओनली। समझ में आया? इसको नोट कर लो। लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड का मतलब ये है, ऑन वन हैंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ। दोनों चीजें म्यूचुअली इंटरट्वाइंड है। वैसे लाइफ बचाने के लिए लाइवलीहुड होना जरूरी है, बट अगर लाइवलीहुड के लाले, अगर लाइवलीहुड इनकम या कुछ और स्कैरसिटी थोड़े टाइम के लिए है तो वो बेयरेबल हो जाती है। यानी कि इकोनॉमिक स्कैरसिटी विल नॉट टेक अ टोल ऑन योर लाइफ प्रोवाइडेड यू आर बीपीएल और यू आर अ वेल टू डू फैमिली, है ना? नॉट सो वेल टू डू फैमिली ऑल्सो, देन ऑल्सो, बट उन लोगों के लिए दिक्कत हो गई थी जिनके घर राशन खाने तक को नहीं था, राइट? Okay, so these things are there. Now I put my phone on silent. India was amongst the first of the countries that imposed a national lockdown when there were only 500 confirmed cases. तो इंडिया was, हमारी ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रही कि लॉकडाउन लगा दो फटाफट से, राइट? नाउ कमिंग हियर, government policy response have varied substantially both across countries and often within the countries in the measures that they have adopted and how quickly they have adopted them. तो इंडिया ने quickly variations in stringency of lockdowns in top 5 countries. इंडिया की stringency 22-23 मार्च आपको मैंने बताया, यहाँ से हमने लॉकडाउन लगा दिया था। तो बाकी कंट्रीज के देखोगे, चाइना में काफ़ी टाइम तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। आप यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रिंजेंसी की टर्म्स में ये मरून लाइन है। देन यूके ने भी इंडिया जितनी स्ट्रिंजेंसी स्ट्रिक्टनेस से तो लॉकडाउन नहीं लगाया। ये कोई पूछेगा नहीं तो मैं इस पर टाइम स्पेंड करूंगा नहीं, लेकिन आपको ये दिख जाए कि इंडिया ने स्ट्रिंजेंट मेजर्स बहुत जल्दी ले लिए थे, राइट? क्रॉस कंट्री एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 केसेस अक्रॉस द कंट्री मेजर्ड एज एक्चुअल केसेस विज़ावी नेचुरली एक्सपेक्टेड। अब इसमें सबसे बुरी बात पता है क्या है? ये कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि एजाइल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। एजाइल मतलब कि वी शुड नाउ बी मूविंग आउट ऑफ इट। फुर्तीली पॉलिसी होनी चाहिए। फुर्तीली मतलब एजाइल, डेक्सटेरिटी होती है ना, कितनी जल्दी मैं अपने हाथ को घुमा सकता हूं, वो वाली डेक्सटेरिटी की पॉलिसी जो है। अब बस ये जो क्राइसिस था ये वंस इन अ मिलेनियम था, इसके बाद छुट्टी। अब वी शुड फोकस ऑन कम्युनिकेबल डिजीजेज and our own healthcare priorities, despite the fact that the scientists community is saying that these type of phenomena would be even more frequent. We should be ready to deal with these kind of things in the future, as the enormity of such, as the frequency of such viruses is going to increase. Why? Because the world is interacting at a pace, at a level at which it never had interacted. जो स्पेनिश फ्लू की, स्पेनिश वायरस की भी हमने बात करी, उस टाइम भी क्रॉस कल्चरल, क्रॉस कॉन्टिनेंटल स्पीशीज ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से मिल रहे थे, राइट? तो वहाँ पे वायरस का, अगर बायोडाइवर्सिटी में क्रॉस म्यूटेशन कुछ ऐसा होता है, गिव एंड टेक ज़्यादा होता है, हम नॉन वेज फूड खा रहे हैं, तरह तरह का ऐसा फूड खा रहे हैं जो पहले नहीं खाते थे, तो ऐसे वायरसेस और ज़्यादा जन्म लेंगे और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है ना? और इन वायरसेस ने भी ट्रांसम्यूटेशन सीख लिया है। ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है? अगर ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो जब ये दूसरे पर्सन में जाएगा, अगर इसके सैंपल को लेके कोई साइंटिस्ट या कोई मेडिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई टैबलेट बना रही है, तो जब कोविड-19 इस पर्सन में जाएगा तो वो अपना नेचर चेंज कर चुका होगा। वो इस पर्सन में किसी उस दवाई से मर जाता, लेकिन अगले पर्सन में वो नहीं मरेगा। फिर इसका जो मल्टीप्लिकेशन है किसी दूसरे पर्सन में और चेंज हो जाता है, आकार, इसका बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन और चेंज हो जाता है। इस पर्सन में जो दवाई इस पर्सन में काम करती वो इसमें नहीं करेगी। अब हमें कोई ऐसी दवा बनानी थी जो इसका सैंपल लेके आने वाले 10 तक, 100 तक, 1000 तक सोच सके। मतलब समझ में आया कि उसकी इनॉर्मिटी क्या होगी, वो वायरस कितना ज्यादा डेडली होगा और कितना कम ससेप्टेबल होगा टुवर्ड्स द ड्रग इन क्वेश्चन। गॉट इट?
यानी कि पहले मैं 100 mg की दवा लेते थे हम लोग, जब आप 1990s की बात करो तो 100 mg की दवा में काम हो जाता था, फिर 500 mg आ गया, फिर आज 1000 mg ले रहे हैं। अब ये 1000 mg जो हम कर रहे हैं ना, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। लेकिन कोविड 19 के केस में जो ट्रांसम्यूटेशन था, जेनेटिक ट्रांसम्यूटेशन कोविड 19 का, ट्रांसम्यूटेशन मतलब होता है एज द वायरस गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इट म्यूटेट्स, not in the similar chain manner, but it transmutates in a manner entirely different from the one it transmutated from one person to another. Got it? समझ में आया ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिक ट्रांसम्यूटेशन, उसका पूरा नेचर चेंज हो जाएगा। अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे काम कर रही है कि अच्छा, एक पर्सन में अगर जो वायरस है या फिर फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, वो 100 mg से नहीं मर रहा तो 100 mg की डोज से खत्म हो जाएगा, 500 से नहीं मर रहा तो 1000 से खत्म हो जाएगा। अब 1000 की भी 2000 mg कुछ टैबलेट्स आ गई हैं मार्केट में, राइट, विच इज़ वेरी सिवियर फॉर द ह्यूमन किडनी एंड ऑल, बट ये मेडिसिन अब हैं, हैवी डोज दिया जाता है। बट कोविड 19 के केस में ड्रग इन्वेंशन में इसीलिए टाइम लगा कि उसका आकार, उसकी शेप, उसका बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन, डीएनए, आरएनए सब चेंज होते चले जा रहा था। कैसे चेंज होगा इसको पता लगाना मुश्किल था। नाउ although all the age groups are at risk of contracting COVID-19, older people facing significant risk of developing serious illness if they contract the disease due to psychological changes that came with aging and potential underlying health conditions. दो इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन, ये एक और बड़ा फैक्टर है। अभी किसी ने पूछा व्हाट इज द रीजन दैट इंडिया वाज एबल टू कंटेन, इंडिया हैड अ यंग पॉपुलेशन with only around 10% share of the people above 60 years of age. Population of people above 60 years of age is significantly higher in India than in any other country. Population of people above, absolute number of people above 60 years of age is significantly higher in India than in any of the other 30 other countries that account for 86% of the cases. देखो, एजाइल पॉलिसी मेकिंग ये बोल रहे हैं, हम अपनी औकात में रह के बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि हमारी पॉलिसी रिस्पॉन्स, अब वी शुड नाउ शिफ्ट द गियर्स टूवर्ड्स आवर ओन प्रायोरिटीज। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स हैं, रिड्यूस मैल न्यूट्रिशन बाय दिस, है ना, उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। उसके फायदे क्या हैं कि हमारी अपनी प्राथमिकताओं के बेसिस पे हमारी इकोनॉमी को गेज किया जाएगा, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस को उसी पे असेस किया जाएगा। लेट मी टेक यू टू दैट चैप्टर। ये थोड़ा सा देख लेना खुद, ये इतना काम का नहीं है, मैं दोबारा से वापस आऊँगा। ये वी शेप और ये सारी शेप्स आज हम समझेंगे, कोशिश करते हैं। जी शेप रिकवरी यानी कि जेड शेप रिकवरी क्या होती है, काफ़ी अच्छे से तुम्हें समझ आएगा। Just 1 minute. एजाइल पॉलिसी में वो ये कह रहे हैं कि हमें, आगे आएगा वो चैप्टर, मैं दोबारा से बता दूंगा। What they are saying is कि when the world would measure India's progress on sustainable development goals, वर्ल्ड की इकोनॉमीज इंडिया की परफॉर्मेंस को असेस करते हुए ये नहीं सोचेंगी कि कोविड 19 के बाद इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आने वाले ऐसे वायरसेस के अटैक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग गया था, है ना। तो इसलिए हमने अपनी स्ट्रैटेजी रीओरिएंट करते हुए कोविड 19 से फोकस हटाते हुए इस तरफ आ जाना चाहिए, जो हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस, यस। कैसी कम्युनिकेबल डिजीजेस? जैसे कि एनसीडीज, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, है ना, मैल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, जो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अगर हम मैल न्यूट्रिशन वगैरह पे फोकस करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वुड अग्री विद मी व्हेन आई से दैट इफ आई एम बेटर नरिश्ड, इफ आई एम बेटर taken care of in terms of my food intake requirements etc., if I am not stunted, how likely are the chances that if next pandemic arrives I would be relatively safe? I would be safer than in a case scenario in which I am not
आई एम नॉट नरिश्ड, आई एम मैल नरिश्ड, है ना। मतलब हमारे लिए ये पॉलिसी सही भी है, हमारे पास इतने ज़्यादा मैल नरिश्ड बच्चे हैं, स्टंटेड हैं, लो वेट टू बर्थ और ये सब, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पहले ही ज़्यादा है कि वी आर इन एन एवर हैपनिंग पैंडेमिक, इजंट इट। इतने बच्चे पैंडेमिक में उनकी कंट्रीज में नहीं मरे होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में, जितने हमारे आए साल यूं ही मर जाते हैं। इसीलिए हमारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, रिसोर्स स्कैरसिटी को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमिक सर्वे व्हेन इट सेज दैट आवर पॉलिसी मेकिंग, हेल्थ केयर पॉलिसी मेकिंग शुड बी एजाइल एंड इट शुड नॉट टेक दैट मच ऑफ टाइम टू रीओरिएंट द स्ट्रैटेजी फ्रॉम दिस थिंग। समझ में आया? Given the resource constraint, we are still struggling to spend 2.5% of our GDP on health. Having said that, the basic health infrastructure, having said that, the development of industries manufacturing active pharmaceutical ingredients, having said that, the capacity of countries, the medical companies to generate medicinal oxygen should be revived, should be there, so that if next time the pandemic arises or any such health crisis arises, we should be having the bare minimum components or raw material. वो ठीक है, हेल्थ सेक्टर में जो कंपोनेंट्स हैं हमें वो पैंडेमिक के लिए तैयारी नहीं करनी, बट हाँ सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करने की, है ना, मास्क मैन्युफैक्चर करने की, या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या ऑक्सीजन, हॉस्पिटल ग्रेड ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी हमें साथ साथ डेवलप करनी होगी। अगर ऐसा आंसर लिखते हो तो तुम सरकार की बीन के साथ स्वर भी नहीं मिला रहे हो, सरकार मतलब ताल से ताल भी नहीं मिलानी, और तुमने अच्छी बात भी कही कि हाँ वो चीज़ें तो हमारी होनी ही चाहिए, राइट? गॉट इट? राइट डाउन दिस पॉइंट नाउ। यस, नॉट रेलीगेटिंग, आर्शिका एंड अदर्स, रेलीगेट होता है बिल्कुल पिछले बैक बर्नर पे डाल दिया। नॉट रेलीगेटिंग द रिसर्च टू द बैक बर्नर, बट डिसाइडिंग अ proportion which needs to be spent on the back burner, which needs to be spent on the research and development. एक प्रोपोर्शन तो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना खर्च करेंगे। क्यों? गिवन द स्टेचर ऑफ इंडियाज, given the stature of India's pharmaceutical industry, in order for Indian pharmaceutical industry to maintain that edge, to maintain that stature, हमारी जो छवि है कि हम pharmaceutical factory of the world हैं, उस छवि को बरकरार रखने के लिए R&D हमें बनानी करना पड़ेगा। We are the first country, one of the first countries to invent this vaccine, which seems to be relatively efficacious, है ना, which seems to be normally efficacious. अभी तक कोई ऐसा कुछ बैकफायर नहीं कर रही है वैक्सीन, तो वो सारा कुछ हमें देखना होगा, ठीक है। नाउ yes, Arshika, as I said, the research is going on as to why so less an impact on relatively less malnourished countries and countries which are in the top of or better than India's slot in the HDR, Human Development Report and all. ऐसा क्यों है ना? Climatology could be one of the reasons, climatic conditions की वजह से हो सकता है, and we in India do not travel as much as they do, right? इंडिया में हम इतना ट्रैवल नहीं करते जितना वो इंटरनेशनल ट्रैवल वो लोग करते हैं, राइट? इंडिया में भी ये देखा गया कि बेबी डॉल में सोने दी, जो भी वो गाना है, उन लोगों को ज़्यादा हुआ है जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह थे। और फिर मुंबई दिल्ली में केसेस ज़्यादा हुए, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल के केसेस महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा होने लगे, है ना। तो उन लोगों को ज़्यादा हुआ है जो उनके कॉन्टैक्ट में थे। हम इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन्स। नाउ अब फटाफट से ये कर्व्स एक बार देख लेते हैं। यहां पे थे हम। नेक्स्ट स्लाइड। इकोनॉमी ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल फॉर 2 complete months. The inevitable effect was 23.9% contraction in GDP, as compared to the contraction in GDP was less than 25%, as compared to the
प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर, अप्रैल मई जून 2020 की बात हो रही है, कंपैरिजन टू अप्रैल मई जून 2019. दिस कॉन्ट्रैक्शन वॉज कंसिस्टेंट विद द स्ट्रिंजेंसी ऑफ द लॉकडाउन. जितना लॉकडाउन स्ट्रिक्ट था, जितना कड़े कदम उठाए गए, उतना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ कम हो रही थी. इकोनॉमी वॉज ग्रेजुअली अनलॉक्ड सिंस जून 2020. In V-shaped recovery, the economy quickly recoups the lost ground and gets back to the normal growth. यहाँ पे ग्रोथ चल रही थी जीडीपी एंड ऑल, ठीक है, एकदम से यहाँ पे ग्रोथ होते होते यहाँ पे आ गई. फिर जैसे ही यहाँ से स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, वैसे तो किया नहीं, इसको वी शेप्ड रिकवरी कहा जाता है. ठीक है, यहाँ से फिस्कल डेफिसिट वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगा. ये फिस्कल डेफिसिट ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे बढ़ रहा था धीरे धीरे से, यहाँ पे आके फिस्कल डेफिसिट ऐसे बढ़ने लग जाएगा. ठीक है, फिर फिस्कल डेफिसिट ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है. समझ में आया? अब ये फिस्कल डेफिसिट का जो हायर लेवल है वो इसके साथ मैच खाता है. यानी कि जैसे हमने रिकवरी की तरफ कदम बढ़ाए, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा. Saharsh, yes, research being talked about in the education policy is of pedestrian level. His question is very good question, that does new national education policy talk about R&D? It is not talking about medical R&D in particular. It is just talking about R&D in general. R&D in general also means R&D in philosophy, research in researcher or research scholar in philosophy, right? वो medical research में count नहीं होता बच्चे. ठीक है, अब मतलब समझ में आया कि ये हमारा बढ़ना चाहिए था फिस्कल डेफिसिट एक्सेट्रा. बट आपको ये बता दूं, कोई इतना ज़्यादा फिस्कल स्टिमुलस वगैरह नहीं दिया गया. ये है कि गवर्नमेंट ने लोन वगैरह थोड़े रिलैक्स कर दिए और लोन देने शुरू कर दिए. ये जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, ये मैडम की कलाकृतियों की वजह से है. ये तो बढ़ना ही बढ़ना था. जब इकोनॉमी नीचे जाएगी तो फिस्कल डेफिसिट अपने आप बढ़ना था. बट इससे हम ये अंदेशा नहीं लगा सकते, वी कैन नॉट कंक्लूसिवली से दैट विद अ साउंड फुटिंग, वी कैन नॉट से दैट increase in the because there was increase in fiscal deficit, that means the government of India gave a huge fiscal stimulus. No, fiscal stimulus तो होगा ही जब जीडीपी नीचे चला जाएगा. मतलब समझ में आया? क्लियर टू एवरीवन? तो ये मतलब था इसका. वी शेप रिकवरी ये होती है, जब ये वी शेप रिकवरी अपने पॉइंट पे होती है तो यहां पे क्या होगा, ये क्या है, इन्वर्टेड टिप है ना, ये टिपिंग पॉइंट है ये, है ना. यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. वी शेप्ड रिकवरी, जेड शेप रिकवरी, ये सारा कुछ अभी समझते हैं फटाफट से. फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकवरी इज द टाइम टेकन फॉर द इकोनॉमी टू नॉर्मलाइज. अब यहाँ पे जैसे मैं ये समझा रहा हूँ, यू शेप्ड रिकवरी क्या होता है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, वो वाली. समझ में आया? कहीं गाना गाने मत लग जाना. तो ये वाली रिकवरी है. यहाँ पे सरकार धीरे धीरे से डोजेस दे रही है. ठीक है, अपनी जो सरकार ने इस पॉलिसी में ये सोच रखा है कि हम इतना इतना स्टिमुलस देंगे, इससे ज्यादा स्टिमुलस नहीं देंगे. अगर हमने इससे ज्यादा स्टिमुलस दिया तो बैकफायर होने लग जाएंगी चीजें. ऐसा तब किया जाता है यू शेप रिकवरी वाला, जब अनसर्टेनिटी हो. मैडम निर्मला सीतारमन वॉज क्वाइट अनसर्टेन कि सेकेंड गश ऑफ केसेस, एकदम से कोविड-19 के केसेस बढ़ सकते हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा. इंडियन गवर्नमेंट वॉज वेटिंग, शी वॉज आउट इन द प्रेस टेलिंग टू द प्रेस दैट जब कोई जो मेडिसिनल ब्रेक थ्रू हो जाएगा, कोई कोविड वैक्सीन हो जाएगी, अगर हम अभी ग्रोथ का पुश दे देते हैं, आगे कोई ये पता नहीं है कि कितना लंबे टाइम तक ये खींचेगा, है ना. हाउ स्ट्रेच्ड इट वुड बी, हाउ फार फेचेड इज द रिकवरी गोइंग टू बी. तो जब तक ये पता नहीं है, तब तक अपना आर्सेनल, अपना इकोनॉमिक आर्सेनल बचा के रखना चाहिए. आर्सेनल मतलब वो आर्मी वाला वर्ड, ठीक है, अपना असला बचा के रखना चाहिए. समझ में आया?
तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टिमुलस दिया ही नहीं। इस बहाने से कोई ग्रेव ऐसा स्टिमुलस नहीं दिया गया कि एकदम से ग्रोथ को जैकअप कर दिया जाए, वी शेप्ड रिकवरी। कहने को ये हो रहा है कि वी शेप्ड रिकवरी है, इंडिया में वी शेप्ड रिकवरी नहीं है, इंडिया में यू शेप्ड रिकवरी ही चल रही है। और ये यू का जो यू वाला पार्ट है वो अभी तक लंबा खिंच रहा है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि वो एकदम से पते पे आ रहा है, राइट। दिस फेज इज प्रोलॉन्ग्ड हियर। हाँ, ये दिख रहा है कि कंसिस्टेंसी है, लेकिन ऐसा थोड़ी है विद एवरी मंथ। वी शेप्ड में तो क्या होता है, मंथ आफ्टर मंथ जीडीपी आईआईपी डेटा पॉजिटिव आने लगता है हर मंथ। ये मंथ ऑफ जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। ऐसा जरूर हो रहा है कि कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कुछ कुछ सुनाई दे रहा है कि हाँ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, राइट। समझ में आया। तो हमारा ग्रोथ ये है, बट इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, वी शेप्ड रिकवरी है। तो तुम्हें इकोनॉमिक सर्वे की बात माननी पड़ेगी समझाने के लिए। यू शेप्ड रिकवरी with each successive month when the GDP data being posted is not that positive, तो we can say with the sound confidence and all कि हमारे यहाँ रिकवरी यू शेप्ड है। ये नवंबर का महीना, ठीक है, गिर रही थी ग्रोथ, फिर दिसंबर का महीना और फिर जनवरी का महीना और, चलो जनवरी में थोड़ा बढ़नी शुरू हो गई, तो हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जो भी ग्रोथ लेवल है वो स्टेबल हो गया है ना। अब इसने अपना एब, लोएस्ट एब जो होता है वो टच कर लिया है, अब आगे इससे नीचे तो नहीं गिरेगा, हम ये कह सकते हैं। फटाफट से रिकवरीज देखते हैं। टाइम टेकन, तो जो जी कर्व है, ये सारे जो कर्व नीचे आप देख रहे हो, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, टाइम टेकन फॉर रिकवरी, ठीक है। टाइम टेकन इज ऑफन अ फैक्टर ऑफ मल्टीपल थिंग्स सच एज द डेप्थ ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितना डिप्रेशन है, रिसेशन में, डिप्रेशन में ग्रोथ कितने परसेंटेज गिरी है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा ना, कि जितनी खाई में जाके गिरे हो उतना ही टाइम लगेगा निकलने में। तो यहाँ पे तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, एक वजह से ये कहा जा रहा है कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ, इट इज अ फैक्टर ऑफ मल्टीपल थिंग्स बारिंग स्टिमुलस। स्टिमुलस इसमें मैटर ही नहीं करता। अदर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन जॉब्स एंड हाउस होल्ड इनकम्स एंड द काइंड ऑफ पॉलिसी रिस्पॉन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे लिखा है स्टिमुलस पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या थी, determines, ये दो तीन चीजें डिटरमाइन करेंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नोट डाउन, जस्ट रीड इट केयरफुली, नो नीड टू नोट इट डाउन। जब हम ये अखबार वगैरह सब कुछ पढ़ रहे थे तो आई यूज टू ड्रॉ दिस बाइसिकल वाला डायग्राम, कि सरकार ये कह रही है क्रेडिट ले लो। सरकार पता क्या कर रही है कि हम चेन चढ़ा देते हैं, चेन उतर जाती थी ना बचपन में साइकिल की, हम बस चेन चढ़ा देते हैं, तुम पैडल खुद मारो। पैडल मारने के लिए अब सरकार ये कह रही है कि हम डिमांड करवाने के लिए प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, सप्लाई जो डिमांड जो है उसको इंसेंटिवाइज नहीं किया गया, हम सप्लाई करने के लिए क्रेडिट दे रहे हैं। मतलब ये चेन जो है, बैंक्स को बोला गया कि चेन चढ़ा दो। चेन चढ़ाना मतलब समझते हो ना, वो जो चेन उतर जाती है साइकिल की। सरकार ये बोल रही है कि बैंक्स को लिक्विडिटी फंड वगैरह दे दिया गया है। वो फंड देने से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो तब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक उसे डिमांड करने वाला कोई नहीं दिखता। डिमांड क्रिएट करने के लिए गरीबों की पॉकेट में 7-7 हजार देने का, बेसिक इनकम देने की बात हो रही थी। उस टाइम सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार ने ये बोला टाइम इज नॉट कंजीनियल, हम आगे चल के देंगे, आगे चल के देंगे और आगे चल के देंगे। फिर बिहार के इलेक्शंस आए तो बोले कोविड वैक्सीन दे देंगे, बस यही है। समझ में आया? ये बात हो रही थी ना कंसिस्टेंटली। हम इसमें बेटर परफॉर्म कर सकते थे अगर हमारे पास फिस्कल लेग रूम होता। लेग रूम क्या होता है? जब कार में आप बैठते हो तो लेग स्पेस कितना है, तुम्हारी टांगे जो हैं, घुटने जो हैं कार की सीट से या डैशबोर्ड से तो नहीं टकरा रहे। वैसे ही सरकार का फिस्कल डेफिसिट पहले ही इतना ज्यादा था, क्योंकि आप बात समझो कि गवर्नमेंट के पास कोई इकोनॉमी चलाने वाला नहीं है। भाइयों बहनों कुछ नहीं करते है ना, उनको कुछ नहीं आता इकोनॉमी में। तो दूसरे जो है, दोनों भाई जो हैं वो यही काम करते हैं, पॉलिटिक्स। मैडम को पहले डिफेंस में लगाया गया, कॉमर्स में मैडम फेल हो गई, उनको कहीं और लगा दिया गया, फिर डिफेंस में लगाया गया, फिर फाइनेंस में लगा दिया गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे भारी मिनिस्ट्री मानी जाती है, तो वो काम नहीं है वहां पे। समझ रहे हो? अब अगर कोई मिनिस्टर ये बोल दे कि प्याज का प्राइस बढ़ रहा है, मैं प्याज नहीं खाती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज नॉट द रिप्लाई। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्राइसिस आया था नवंबर 2019 में, सितंबर 2020 में इंडस्ट्री, सितंबर 2019 में इंडस्ट्री ये कह रही थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैडम प्लीज जीएसटी रिड्यूस कर दो,
है ना। मैडम ने ये बोला कि जीएसटी रिड्यूस नहीं करेंगे, उबर ओला चला लो। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, मैडम कहती है कि बढ़िया है, लोग उबर ओला से ट्रैवल करेंगे। This is not the responsibility, these are not the responsible statements expected from a finance minister of the largest democracy, right? तो वो सारी चीजें चल रही थी। साइकिल पहले से पंचर थी, एग्जैक्टली दिस यूज्ड टू बी माय क्लीशेड स्टेटमेंट कि साइकिल में पॉइंट ये है कि दो पेडल होते हैं ना। बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि ये दो पेडल का मतलब ही यही है कि आप एक पेडल डिमांड का, दूसरा पेडल सप्लाई का। सप्लाई और डिमांड में कीन्जियन थ्योरी में ये कहा गया कि अगर ऐसे क्राइसिस के टाइम्स होते हैं तो गवर्नमेंट शुड टेक द लीड, गवर्नमेंट शुड नॉट वेट एंड वॉच। आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रखी हैं। यहाँ पे ये जो कोट दे रखा है मोटिवेशन और नोबेल लॉरिएट का, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो शायद गरीब लोगों के लिए डैमेज नहीं होती। दो द वर्स्ट फेज इज ऑलरेडी पास्ट अस, हम ऑलरेडी वर्स्ट फेज को पीछे छोड़ आए हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने जब 2-3 हज़ार रुपए भी गरीब आदमी की पॉकेट में जमा नहीं कराए, तो वॉज दिस quote or was this phrase implemented? It recommends a policy focused on minimizing the losses in a worst case scenario. Merely imposing a stringent lockdown, you cannot say that you have minimized the loss. The government would have minimized the loss only if government would have done something to ameliorate the condition of those people who were moving out on the roads, who were mowed down by the railways. उनके लिए कोई स्टिमुलस वगैरह नहीं दिया गया। उन गरीब लोगों के जिनके जनधन योजना अकाउंट्स खुले थे, उनके अकाउंट में यदि 1-1 हज़ार भी जमा करवाया जाता, 2-2 हज़ार भी जमा कराया जाता, तो शायद आज हमारा ग्रोथ रिकवरी जेन्युइनली वी शेप्ड रिकवरी होती, राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। गलती गवर्नमेंट की नहीं है, गलती पहले वाले फेज की है। गवर्नमेंट की पहले गलती थी। कोविड-19 में गवर्नमेंट के पास फिस्कल रूम ही नहीं था, फिस्कल डेफिसिट वाज ऑलरेडी वेरी हाई। और मैडम जब ये कहती थी कि हमें पता नहीं है, इट्स वेरी अनसर्टेन सिचुएशन, कि स्टिमुलस दे दो, लोगों को पैसा दे दो, आगे चल के क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग इज द रिसेशन गोइंग टू लास्ट, है ना। ये मैडम की स्थिति कुछ ऐसी मदर जैसी हो गई थी जिसके पास सिर्फ 4 दाने चावल के हैं और दिन लगते हैं कि 1000 होंगे। अगर वो 4 दाने आज बच्चों को बांट देगी तो 1000 दिन क्या करेगी, ये एक दिक्कत थी, राइट। और जेन्युइनली कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर होता वो यही करता, लेकिन पहले अगर फाइनेंस मिनिस्टर कोई अच्छा होता तो ये सिचुएशन ही ना आती। पैंडेमिक बिगैन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड द वायरस इज, अभी भी अगर स्टिमुलस दे दिया जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हम, बट मैडम है कि मानती नहीं। नाउ कमिंग हियर टू द अदर एस्पेक्ट, जान है तो जहान है, ब्रेकिंग द चेन, ये सारा कुछ हो गया था हमारा। इन वी शेप रिकवरी ये भी हो गया था, जेड शेप। अब सारी रिकवरी की फॉर्म्स पढ़ते हैं। जी शेप रिकवरी, it is the most optimistic scenario in which the economy quickly rises after an economic crash. It makes up more than what it lost. ठीक है, it makes up more than for the lost ground before settling back to the normal. इतना ज़्यादा स्टिमुलस इस केस में दे दिया जाता है जैसे ही फर्स्ट अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आते हैं, यानी कि जैसे ही 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था, अग्रेसिव स्टिमुलस पैकेज दे दो, फिर उससे क्या होगा, ग्रोथ एकदम बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद ये ग्रोथ वापस ये वाला फिनोमिना नहीं होगा, डब्ल्यू वाला फिनोमिना नहीं होगा। इतनी ज़्यादा ग्रोथ ऊपर जाके रुकेगी भी तो नॉर्मल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके रुक लेगी, वेयर the producers, the factors of production are matching the demand, जहां पे डिमांड और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली ऑक्यूपाइड होते हैं, जीरो एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन होती है, बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ हर साल हर मंथ अच्छी हो रही होती है, क्रेडिट ऑफ टेक, लोन कितना ले रहे हैं, अदानी अंबानी जितना नॉर्मल ले रहे होते हैं उतना नॉर्मल लोन लेंडिंग और बोरिंग होने लग जाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फुल कैपेसिटी पे होने लगती है, तो ये वाला लेवल है। जी शेप्ड रिकवरी के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, जैसे चुनाव जीतने के लिए वो 56 इंच का सीना नहीं दिखाया गया। समझ में आया? यानी कि ये फटाफट से अगर स्टिमुलस दिया जाता उसके लिए लेग स्पेस चाहिए होता है, वो लेग स्पेस फिस्कल रूम अवेलेबल नहीं था, देयर वाज नो फिस्कल स्पेस अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। इंडिया में जेड शेप नहीं किया गया। इन दिस इकोनॉमिक डिसरप्शन
इन दिस इकोनॉमिक डिसरप्शन लास्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड। इकोनॉमिक डिसरप्शन देखो बहुत छोटे पीरियड के लिए हो रही है। ग्रोथ नीचे डिप हुई, जैसे ही ये डिप हुई आपने बढ़ा दिया। जैसे चाय बना रहे होते तो क्या करते हो, जैसे ही वो चाय की उबाली आ रही होती है, बॉयल हो रही होती है, जैसे वो नीचे बैठती है तुम गैस फिर तेज कर देते हो, ऊपर होने लगती है, तब तक ऊपर लेके जाते हो जब तक वो अपने नॉर्मल पे ना आ जाए। करते हो ना ऐसे स्टूडेंट लाइफ में, मैं तो करता था, तुम्हारा पता नहीं। नाउ इन दिस इकोनॉमिक डिसरप्शन लास्ट फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड वेयर इन मोर पीपल्स इनकम, wherein more than people's income, it is their ability to spend is restricted. ठीक है, wherein ऐसी सिचुएशन में more than people's incomes, it is their ability to spend that is restricted. उनकी ability जो spend होने की है बस वही restrict होती है। इनकम पे तो बात ही नहीं आने दी जाती, यहां तक तो बात नहीं आने दी जाती। अगर इसी सिचुएशन को प्रोलॉन्ग होने दिया जाए, अगर इसी सिचुएशन को प्रोलॉन्ग होने दिया जाए तो पता क्या होगा, ये यहाँ पे आ रहा है ना अभी, तो फिर गवर्नमेंट ये ऐसे करेगी कि चलो चल रहा है तो इसको यहाँ तक जाने दो, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात, अभी तो रेड वाला जो कर्व है ना, वहां पे तो बात सिर्फ लोग डर जाते हैं कि क्या पता मेरी नौकरी चली जाए। ऐसी सिचुएशन में लोग डर ही नहीं जाते, या ऐसी सिचुएशन में उनको ये होता है नौकरी चली गई, इनकम अफेक्ट होने लग जाती है, सो कॉल्ड लाइवलीहुड इज अफेक्टेड। अगर Z को थोड़ा और नीचे जाने दिया जाए। गॉट इट? Z shape recovery in China, yes. Clear? Saharsh, very nice question he is asking. When inflation is high, is it safe to give stimulus? His question is basically, सभी लोग ध्यान से समझना, जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई होती है, चलो तंदूर से समझा देता हूँ। तंदूर मॉडल मेरा सभी समझते हो तुम लोग। मान लो कि मैं एक गरीब वर्कर हूँ, तुम भी एक गरीब वर्कर हो, ठीक है, तुम रोटियां निकाल रहे हो तंदूर में से। अब जब ऑलरेडी आग जो है बहुत ज़्यादा है, आग की लपटें, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ऐसे टाइम पे क्या कोयले का स्टिमुलस देना अप्रोप्रिएट है? दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग। गरीब आदमी के हाथ जल जाएंगे। How many of you would agree with me? तो दो पॉइंट से मैं इसको समझाऊंगा। एक तो ये कि आज अगर इन्फ्लेशन हाई है, पहले तो इन्फ्लेशन हाई नहीं थी, फैक्ट ये देखते हैं कि जिस टाइम ये पैंडेमिक वगैरह आया इन्फ्लेशन हाई नहीं थी। अच्छा, अगर मार्च में इन्फ्लेशन हाई थी भी, तो जब लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस को, कोविड-19 पैंडेमिक के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूसर ने सैलरीज देनी बंद कर दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी बंद कर दी, सैलरीज में कटौती कर दी। अप्रैल की प्रोजेक्शंस आरबीआई के पास पहले से होंगी कि अप्रैल में इकोनॉमिक सेंटिमेंट को देखते हुए इन्फ्लेशन लो होगी।
तो इसके हिसाब से स्टिमुलस दिया जाना चाहिए था. इवन if at the present time, at the moment inflation is high, but what is the projection for the inflation in the coming 3 months? आने वाले 3 महीनों का जो RBI का projections का मॉडल होता है, जिस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी का रेट कट या रेट इंक्रीज डिसाइड किया जाता है, उसने उस मॉडल के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री को बता दिया होगा कि ग्रोथ आने वाले टाइम में कम होगी, इन्फ्लेशन भी कम होगी, तो आप पहले से ये जो लपटें अभी बढ़ रही हैं ये यहां तक हो जाएंगी, तो आप इतना सा स्टिमुलस और दे सकते हो, और कोयला और स्टिमुलस डाल सकते हो, रेट कट कर सकते हो या पैकेज दे सकते हो. दूसरा, सबसे ज्यादा जो लोग अफेक्ट हुए थे बीपीएल कैटेगरी के, उनको स्टिमुलस दिया जाना चाहिए था, सेक्टर वाइज स्टिमुलस. फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ माइंड, माई फर्स्ट point of explaining is this. My second point is sector wise या category wise stimulus could have been thought about during these type of things. Milap, I was thinking of your name बच्चे since last 2-3 days. Where were you? Santosh? ठीक है, तुम लोग कोर्सेज में नाम दिखते रहते तो मुझे टेंशन नहीं होती कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, फिर तुम बीच में गायब हो जाते हो इंटीग्रेटेड जीएस वगैरह में, फिर मुझे लगता है पता नहीं कहाँ गया. राइट, की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट के नहीं. समझ में आया? ये दो एक्सप्लेनेशन समझ में आई? सेक्टर वाइज होता है जो लोग वर्स्ट अफेक्टेड हैं, इवन इफ देयर इज जनरल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, द पीपल हु आर वर्स्ट अफेक्टेड, they should be profiled and they should be identified and then they should be given the stimulus. Done? ठीक है. वी शेप्ड रिकवरी ये हमने कर लिया, यू शेप्ड पे आता है. 1 मिनट. Z shaped हो गया, then your V shaped. now it is the next best scenario. सबसे बेस्ट होती है Z shaped, घुसे और निकल के आ गए, यानी कि जैसे पानी में डुबकी लगाते हो ना, कहीं गंगा नहाने जाते हो या स्विमिंग पूल में, ये वो वाला सीन था. ठीक है, और अब है V shaped रिकवरी. तो बूस्ट इतना ज़्यादा नहीं दिया कि ऊपर उछल गई ग्रोथ, लेकिन इतना तो दिया कि जैसे ही निकले और उतना पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया जितना पैसा इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए चाहिए. इट इज द नेक्स्ट बेस्ट सिनेरियो आफ्टर जी शेप्ड रिकवरी इन विच द इकोनॉमी क्विकली रिकूप्स द लॉस्ट ग्राउंड एंड गेट्स बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड लाइन. नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड लाइन. In this, incomes and jobs are not permanently lost and the economic growth recovers sharply and returns to the path it was following before the disruption. Clear? Economy recovers but activity permanently lost. तो ये यहाँ पे था ये वाला सिनेरियो. फिर एक्टिविटी resumed for now हो जाता है ये वाला. अब आगे चलते हैं. वी शेप्ड समझ में आ गया. यू शेप्ड, इट इज अ सिनेरियो इन विच द इकोनॉमी आफ्टर फॉलिंग स्ट्रगल्स अराउंड अ लो ग्रोथ रेट. यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है कि ऊपर उठाया जाए, बट फॉर सम टाइम इट इज जनरली 3 क्वार्टर्स. अगर कोई ग्रोथ 9 महीने के लिए यानी कि 3 तिमाहियों के लिए 3 क्वार्टर्स के लिए स्ट्रगल करती है, टेक्निकली स्पीकिंग, व्हेन द ग्रोथ इज at a rate below the normal rate for 3 long quarters or more, then it is U-shaped recovery before rising gradually to usual levels. ये usual level पे rise करने लगती है, उससे पहले ये hiccups देखने को मिलते हैं. In this case several jobs are lost and people fall upon their savings. इस टाइम पे लोग अपनी
सेविंग्स पे काम चला रहे होते हैं। डन। इफ दिस प्रोसेस इज मोर लॉन्ग ड्रॉन देन इट थ्रोज अप द एलोंगेटेड यू। हमारी कंट्री में एलोंगेटेड यू कर्व ही चल रहा है अभी तक, ठीक है, एलोंगेटेड चल रहा है ना, घुसे हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे, थैंक्स टू निर्मला, राइट। We'll talk about that, Amruta. We will be talking about, we'll certainly be talking about role of this thing. Shikha, aap aa gaye finally. Finally, you got the access to the course. Okay, she was the one who was messaging. Now, W-shaped recovery is a dangerous creature. इन दिस, यहाँ पे पता क्या होता है, मैडम का खतरा सबसे ज़्यादा यही था, इंडिया में सबसे ज़्यादा खतरा यही था कि ग्रोथ रुकती और हम दिखा देते कि देखो हमने पूरा पैसा खर्च कर दिया, फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे बढ़ चुका होता है ना। फिर अगर फिर दोबारा से मैडम इसी चीज़ के बारे में, वैसे बहुत समझदार है मैडम, JNU से हैं, अंडर एस्टिमेट मत करना, समझ रहे हो ना, तो कन्हैया कुमार वाले यूनिवर्सिटी से हैं। नाउ मैडम को ये समझ में आ गया कि पैसे वैसे तो हैं नहीं, चलो फिर भी अगर एक बार खर्चा कर दिया और अगर उसके बाद नीचे चले गए फिर तो भगवान भरोसे काम हो जाएगा, हर हर मोदी हो जाएगा काम, समझ में आया। फिर यहाँ पे हमारी ये वाली स्टेज आने में पता नहीं कितने साल लग जाते, अच्छे दिन ही आ जाते फिर, इसीलिए हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं थी। तो मैडम वॉज राइटफुली fearful about her own misdeeds in the past, that considering the growth in the past that we have given for last 5 years, spoiled story that we have created including me and Arun Jaitley, it wouldn't be proper for us to go ahead with another stimulus. So that's why she held back on the stimulus and she said that नहीं ऐसे ही ठीक है। रूपा रानी, मैंने पहले समझाया, यू शेप पे मैंने बहुत टाइम लगाया है, फिर भी बता रहा हूँ। यू शेप में क्या होता है कि एकदम से, वी शेप में तो हम एकदम से सरकार स्टिमुलस दे देती है, लेकिन यू शेप में सरकार बोलती है हम करेंगे हम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे आएंगे आएंगे, उतने में प्रोलॉन्ग्ड रिकवरी में टाइम लग जाता है। ग्रोथ नीचे गिरती है तो वो धीरे 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 गिरती चली जाती है, राइट, उठती है लेकिन उसमें टाइम लगता है। ये हो सकता था अगर लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस वुड हैव बीन लिफ्टेड टू सून। लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस अगर लिफ्ट कर दी जाती, जीडीपी सफर्स एज मोर केसेस, जीडीपी वुड हैव सफर्ड एज मोर केसेस पैरालाइज्ड इकोनॉमी। क्लियर, और ज्यादा केसेस इकोनॉमी को और ज्यादा पैरालाइज कर देते, तो इसलिए मैडम ने सही सोचा कि अभी हम ये सारा कुछ नहीं देते, स्टिमुलस वगैरह अभी नहीं देते, ठीक है, समझ में आया। We will be understanding all those terms which were in news in the current affairs and some of them here also. जो हमने करा था ना हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, जो भी टर्म्स थी, my team is working day in and day out on all these things. They are also students who have appeared in mains or interview once or twice, so they are digging out, they are pulling out all these schemes which find a mention in the economic survey. So we will be giving you a handout of all those things in various courses, don't worry. Double dip depicted by W-shaped recovery can be due to the second wave of the pandemic. ये तो पैंडेमिक सेंट्रिक देख रहे हैं, मैंने आपको इन जनरल बता दिया डबल डिप कब होता है, जब मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं, ठीक है, और मैं पूरे पैसे अपने सेविंग्स को झोंक देता हूं, वंस एंड फॉर ऑल आई स्पेंड एवरीथिंग दैट आई हैव, आई गिव टू द ग्लोबल, आई गिव टू माय ग्रोथ रिकवरी, and when I do this, my fiscal deficit, my borrowing, everything has increased to this level, and if it falls and after my best of the efforts economy does not see any revival, I will see double dip recession. This is technically called, our honorable intellectual former prime minister, we do not have any hopes of intellectuality from the incumbent one, double dip recession was given by the economist Dr. Manmohan Singh. समझ में आया, इकोनॉमिस्ट, ये बातें इकोनॉमिस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। डबल डिप रिसेशन क्या है, एक बार रिसेशन से निकले फिर दोबारा चले गए, उन्होंने डबल डिप रिसेशन जो टर्म यूज किया था
G20 की 2010 की मीटिंग में किया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज एकदम से स्टिमुलस पैकेज को विड्रॉ करेंगी, बैरक ओबामा के साथ G20 में जब वो गए थे तो उन्होंने बोला कि अगर सारी इकोनॉमीज एकदम से स्टिमुलस पैकेज विड्रॉ करेंगी तो दिस माइट लीड टू डबल डिप रिसेशन। आफ्टर विच बैरक ओबामा देन सेड कि डॉक्टर मनमोहन सिंह द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज एन इंटेलेक्चुअल, पीपल लिसन टू हिम एट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली व्हेन ही स्पीक्स। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि जब मनमोहन सिंह की बोलने की बारी आई थी UNGA में G20 मीटिंग में, तो G20 की मीटिंग्स 2-2 दिन लगातार चलती हैं। 20 कंट्रीज 2 दिन में मीटिंग होती है, वो लगातार बोलते हैं बारी बारी करके। ठीक है, तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलने आते थे एज एन इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक मैटर्स पे जब वो बोलने आते थे तो जो डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह सो रहे होते थे अपने होटल्स के रूम में, तो वो G20 की उस समिट हॉल में आ जाते थे उनको सुनने के लिए। इट वॉज आफ्टर नोटिसिंग दिस दैट बैरक ओबामा सेड कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज एन इंटेलेक्चुअल, वर्ल्ड लिसन्स टू हिम व्हेन ही स्पीक्स। तो जब उन्होंने ये कहा था, अपनी एक अग्रेसिव स्पीच दी थी, उसके बाद इकोनॉमी में 2007-8 में, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग, तो इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, अपना जो स्टिमुलस पैकेज विड्रॉ करने की बात हो रही थी, टेपरिंग ऑफ जिसे कहते हैं, कि अब बस इकोनॉमी में ज़्यादा नोट छाप दिए USA के फेड रिजर्व बैंक ने। उस टाइम पे ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, स्टिमुलस कीन्जियन थियोरी के हिसाब से दिया जा रहा था काफ़ी सारी इकोनॉमीज के द्वारा। लेकिन मनमोहन सिंह की बात को सुनने के बाद धीरे धीरे से स्टिमुलस पैकेज को विड्रॉ किया गया। अगर एकदम से स्टिमुलस पैकेज दे देते हो, फिर उसको एकदम से सारी कंट्रीज विड्रॉ कर लेंगी, तो फिर दोबारा से एक नेगेटिव सेंटिमेंट अराइज हो जाता है। समझ में आया? विजय माल्या ने कुछ ऐसा ही किया था अपनी कंपनी के साथ में। उन्होंने इतना पैसा लगा दिया कि उन्होंने ये सोचा कि अब फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। ये एक उस पायलट की सिचुएशन है जो स्टॉर्मी वेदर में क्लाउड से अपने जहाज को ले जाने लगता है, पूरा एक्सेलरेटर दबा देता है, और फिर भी अगर जहाज नहीं निकलता और तेल खत्म हो जाता है तो फिर वो क्या करेगा, ये करेगा। समझ में आया? एल शेप्ड रिकवरी, इतनी बुरी तरह ग्रोथ गिर जाती है जैसे आप वेनेजुएला और ये सब कंट्रीज की। आप, मैं पैंडेमिक सेंट्रिक नहीं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू इन जनरल सो दैट यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एट वेरियस अदर प्लेसेस। एल शेप कब होता है? जब इकोनॉमी को इतना सिवियर डैमेज होता है कि उसके बाद उठ के आगे बढ़ना एक स्नेल्स पेस फिनोमिना हो जाता है। इकोनॉमी नेवर फुली रिकवर्स। डन? Clear? Far-sighted policy response for the economy. Pandemic-induced lockdowns led to local. अब ये सारा कुछ जो है कल की क्लास में कवर करेंगे बाकी चीज़ें। I hope this class was interesting for you and you were able to understand the some of the concepts today and you got an idea as to how to cover the economic survey yourself also. So we will be covering each and every chapter, but we will proceed a little slow because as I am taking the class, आई एम गेटिंग सम मैसेजेस ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ। ठीक है, तो मैं इतना स्लो नहीं पढ़ा रहा था, इतना तेज़ भी नहीं पढ़ा रहा था। आज की स्पीड सही थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए चलेंगे स्पीड को, सो दैट वी कैन वाइंड अप दिस एंटायर डिस्कशन इन नेक्स्ट 15 क्लासेस। ओके, आई होप इट वॉज एन इंटरेस्टिंग lecture for you and insightful lecture for you guys. Thank you guys, see you tomorrow the same time. Thank you everyone, good night guys, bye bye, good night.